I'm starting with theory of bending. So the basic equation we use in case of theory of bending is m by I sigma b by y is equal to E by R. This is the equation of theory of bending, or you can say this is a bending equation. So in this equation, what is M? M is maximum bending moment, and the unit is Newton meter. So this is in the previous chapter, you have plotted the shear force and bending moment diagram, and you have find out the maximum bending moment. Now I is the moment of inertia of area of cross section. जो भी हमें बीम गिवन होगी उसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, कि जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, आई सेक्शन, टी सेक्शन, उसका हमें क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. दिस इज आई एक्स एक्स एंड द यूनिट मीटर की पावर 4. नाउ दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस वन इज डिस्टेंस ऑफ फाइबर्स. जिन भी फाइबर्स पे हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहते हैं उनका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. So A is Young's modulus and R is radius of curvature. So this is the bending equation, m by I sigma b by y is equal to E by R. So today we will derive this equation. Now theory of bending assumptions. Now our first assumption in theory of bending is the material is assumed to be homogeneous, perfectly elastic and isotropic. Now the second assumption is a transverse section of a beam which is plane before bending will remain a plane after bending. Transverse section means it's a side view. It's remain plane before bending and after bending. And third assumption is the radius of curvature of the beam before bending is very large in comparison to the transverse dimension of the beam. The transverse dimensions are side view dimensions, means cross sectional dimensions. And next assumption is the elastic limit is nowhere exceeded, means stress is remains directly proportional to strain. Then fifth one is the resultant push or pull across transverse section of the beam is 0. Then sixth one is Young's modulus for the material is the same in tension and compression. Then seventh assumption is the transverse section of the beam is symmetrical about an axis passing through the centroid of the section and parallel to the plane of bending. So these are the assumptions of theory of bending. This is the front view of the beam. You can see in this diagram, this is a section. So when we apply load on this beam, this will bend like this. This is diagram number B. Now you have to see the diagram number B. This first one is A diagram and last one is B. So in first diagram, this is the front view of the beam and this is the neutral axis. Then we have taken a small section A, B, C, D, small element in this beam, and EF is the axis, neutral axis, or and GH is we have taken another fiber. एक और हमने यहाँ एक फाइबर लिया GH at a distance, यहाँ क्या है y distance पे. तो जब यहाँ लोड अप्लाई करेंगे बीम पे, so beam will bend like this. तो बीम क्या है, ऐसे बेंड हो जाएगी.
तो नाउ ई एफ बिकम्स ई E1 F1, ई एफ क्या है हमारा E1 F1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जी एच क्या है G1 H1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए बी क्या है ए बी डैश में, और सी डी क्या है सी डी डैश में, एंड दिस विल फॉर्म ए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इससे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बन जाएगा, और सेंटर पे ये थीटा एंगल सस्टेंड करेगा। तो जब भी कोई बीम बेंड होगी उसके अपर फाइबर तो क्या है कंप्रेशन में आ जाएंगे, और लोअर फाइबर क्या है टेंशन में आ जाएंगे जब ऐसे बेंड होगी। जब रिवर्स बेंड होगी तो अपर फाइबर टेंशन में आ जाएंगे और लोअर फाइबर कंप्रेशन में आ जाएंगे। ये सामने हमने ये एलिमेंट लिया, इसी एलिमेंट को हमने क्या कंसीडर किया, दिस इज दिस पॉइंट इज ए बी सी डी। इस एलिमेंट के फ्रंट व्यू में ये हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो सेंटर से पास हो रही है, ये इसकी एक एक्सिस है, ठीक है। ये हमने इसे ई एफ लिया, ठीक है। और एक यहां पे एक फाइबर लिया एट ए डिस्टेंस वाई, ये जी एच, इस फाइबर का नाम रख दिया जी एच। इसके ऊपर भी फाइबर हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। एट ए डिस्टेंस हमने यहाँ वाई, ये डिस्टेंस वाई है जो न्यूट्रल एक्सिस से, तो वाई डिस्टेंस पे एक फाइबर लिया हमने जी एच। अब ये बिफोर बेंडिंग, तो आफ्टर बेंडिंग ये क्या हो जाएगी, ऐसे कर्व में बेंड हो जाएगी बीम, ठीक है। अब ये जो हमारा ए बी सी डी सेक्शन था वो क्या बन जाएगा, नीचे वाली फाइबर क्या आ गई ए बी क्या आ गई टेंशन में आ गई, A1 B1 इट बिकम्स, सी डी क्या आ गई कंप्रेशन में आ गई, C1 D1, ठीक है। ई एफ रिमेन सेम, जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमारी न्यूट्रल एक्सिस, इसको E1F1 लिख देता हूं, बट E1F1 और EF ये फाइबर दोनों सेम रहेंगे, न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज रिमेन सेम। अगर और GH बिकम्स G डैश H डैश, नीचे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाली सारी फाइबर्स किस में आ जाएंगी, टेंशन में आ जाएंगी। ये एक्सटेंड हो गई सबकी लेंथ, ऊपर वाली फाइबर कंप्रेस हो गई। तो अगर हम एक सपोज ये सेंट्रल एक्सिस है, उसके ऊपर इधर एक्सिस लेके अगर मैं कंप्रेशन को नेगेटिव ले लेता हूं, लेफ्ट साइड नेगेटिव है राइट साइड पॉजिटिव है, तो अगर ये प्लॉट करता हूं डायग्राम, तो ये कुछ ऐसा प्लॉट होगा कि नीचे वाली फाइबर क्या है सारी टेंशन में आ गई, इन पे पॉजिटिव स्ट्रेस होगी सिग्मा टी, ठीक है। ये सिग्मा सी, ऊपर वाली क्या है कंप्रेशन में आ गई। तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है कोई इफेक्ट नहीं है, ना तो कंप्रेशन है ना टेंशन है। अब इस डायग्राम को देखते हैं, ये जो यहाँ पे एक क्या है थीटा एंगल बनाएंगे, ये हमारी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक बन गया, एक ये ई एफ का है। अब सिंपल है, हमें जी एच में स्ट्रेन निकालना है। जी एच पहले ये थी, ठीक है, ये फाइबर की लेंथ ये थी, अब G1H1 क्या है, अब ये इंक्रीज हो गई है। अब स्ट्रेन इन GH, GH में निकालेंगे, फाइनल लेंथ क्या है G1H1 है हमारी आफ्टर बेंडिंग, जब बेंडिंग हो गई है तो इनिशियल लेंथ क्या है GH है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है हमारा स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है आर थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो जो हमारा GH है, GH इस डायग्राम में देखोगे वो EF के बराबर है, GH क्या है EF के बराबर है फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है। और E1F1 और EF क्या है इक्वल है, ये E1F1 के बराबर भी है। और E1F1 क्या है हमारा आर थीटा, इस डायग्राम से ये लेंथ ऑफ आर्क है E1F1, R is the radius, theta is the angle subtended at the center. So L is equal to R theta से हमने ये निकाल लिया। ऐसे ही हमारा G1H1 क्या होगा, G1H1 R अब कितनी है G1H1 तक, ये Y और ऐड होगी क्योंकि ये Y R प्लस Y ये रेडियस है इसकी, R प्लस Y रेडियस है और थीटा एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर है, तो हमारा R प्लस वाई थीटा हो गया। अब ये वैल्यू सारी इस फॉर्मूले में फीड कर देंगे। G1H1 को लिखना है हमें R प्लस वाई इंटू थीटा, और GH को क्या लिखना है
आर थीटा लिखना है, क्योंकि जी एच ई वन एफ वन के इक्वल है, ई वन एफ वन क्या है हमारा आर थीटा लिख दिया। तो इसको जब ओपन करेंगे आर थीटा प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा अपॉन आर थीटा, तो ये आर थीटा कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, और हमारा स्ट्रेन क्या आ गया इज इक्वल टू वाई बाय आर। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो स्ट्रेन इससे क्या निकला है, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन की वैल्यू यहां फीड कर देंगे, तो स्ट्रेन अब हमारा क्या हो गया, सिग्मा बाय ई इज इक्वल टू वाई बाय आर। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम कि सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। ये हाफ पोर्शन जो हमारी इक्वेशन है एम बाय आई सिग्मा बाय वाई, ये बी बी ही है, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, ये सारा बेंडिंग स्ट्रेस ही है, इज इक्वल टू ई बाय आर। ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है, इसका ये हाफ पार्ट प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा, हमें ये प्रूव करना है एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई। स्मॉल एलिमेंट ले लिया डी ए, स्मॉल एरिया अज्यूम किया, न्यूट्रल एक्सिस, और एक स्मॉल एरिया है एट ए डिस्टेंस वाई, वाई पे है स्मॉल एरिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स, फोर्स ऑन दिस स्मॉल एरिया। तो डी एफ इज द फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, डी ए, स्ट्रेस इनटू एरिया हमारा डी एफ इज इक्वल टू, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो फोर्स हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस इनटू एरिया है हमारा। और फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर है, ई बाय आर हमने हाफ प्रूव कर दिया। तो ई बाय आर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ई यंग मॉडुलस इज कांस्टेंट, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी कांस्टेंट है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है। वो हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। कैसे देख सकते हैं, सिग्मा क्या है, हमारी स्ट्रेस है। अभी मैंने डायग्राम ये प्लॉट किया है, ठीक है, ये डायग्राम हमने प्लॉट किया है। तो इस डायग्राम में ये जैसे जैसे y बढ़ता जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y, यहां पे y गैस न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है, ऊपर y बढ़ता जा रहा है और नीचे भी y बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे y इंक्रीज होगा, अपर साइड पे क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंक्रीज होती जा रही है इनकी वैल्यू, और डाउन साइड पे टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहां मैक्सिमम होगी एट द आउटर फाइबर। सो ये जो y की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, जैसे जैसे y की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, जैसे वैसे वैसे हमारी क्या स्ट्रेसेस इंक्रीज होंगी। इस फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं कि E बाय आर कांस्टेंट है और सिग्मा B बाय वाई, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सिग्मा बाय वाई है इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय वाई 1 होगा, सिग्मा कम्स आउट एज सिग्मा 1 बाय वाई 1 इंटू वाई, सिग्मा की वैल्यू। अब ये सिग्मा की वैल्यू क्या है, हम इसमें फीड कर देंगे डीएफ। तो डीएफ हमारा क्या आ गया, सिग्मा की जगह अब हमें क्या लिखना है, सिग्मा 1 बाय वाई 1 इंटू वाई, ये सिग्मा की जगह लिखा, और डीए हमारे पास आगे है ही, ठीक है। ये फोर्स हो गया ऑन द स्मॉलर एरिया पे, ये फोर्स आ गया। मूवमेंट निकालनी है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू ये स्मॉल फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज मूवमेंट। तो इस डीएफ से वाई को, अगर ये वाई डिस्टेंस पे है हमारा न्यूट्रल एक्सिस से, मूवमेंट निकालनी है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से। और डीएफ हमारा ऊपर क्या था, सिग्मा 1 बाय वाई 1 इंटू वाई और डीए, और इंटू वाई एक और आ गया, 2 वाई हो गए हमारे। तो डीएम हमारा क्या हो गया, सिग्मा 1 बाय वाई 1 इंटू वाई स्क्वेयर डीए। इफ वी डू द समेशन, अब टोटल मूवमेंट निकालना है, टोटल मूवमेंट मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है, तो हमें क्या दोनों साइड समेशन करना होगा। तो मैक्सिमम मूवमेंट कैपिटल एम समेशन दिस साइड एंड सिग्मा 1 बाय वाई 1 इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर डीए, एंड दिस इज क्या होता है हमारा सिग्मा 1 बाय वाई 1, दिस इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इससे हम क्या बता सकते हैं, m बाय आई इज इक्वल टू, और सिग्मा 1 बाय वाई 1 क्या है हमारा,
ये ऊपर हमने देखा ये सिग्मा बाय वाई के बराबर है, ये सिग्मा 1 बाय वाई 1 के बराबर आ गया, ये सिग्मा वाई वाई, तो ये हमारा क्या है m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, ये सेकेंड हाफ जो है हमारा ये प्रूव हो गया।